یہ الیکشن پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ دھاندلی شدہ الیکشن تھا. پاکستان پیپلز پارٹی پہ تو ہر الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے، ہر الیکشن میں ہمارا مینڈیٹ ہم سے چھینا جاتا ہے. ہم سے دھاندلی ہوئی، ہم سے ہاتھ ہو گیا، ہم سے دھاندلی ہوئی، ہم سے ہاتھ ہو گیا. سب سے زیادہ دھاندلی جو ہے یہ ہمارے حلقوں میں ہوئی. دو شخصیات ایسی تھی جنہوں نے ذاتی انٹرسٹ لے کر اس کی کی ہے. ایک تو چیف جسٹس تھے اس وقت کے. میں نے تو پہلے دن کہا تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے. دھاندلی سب سے زیادہ اگر ہوئی تو ہمارے ساتھ. افتخار محمد چودھری صاحب تو ڈیفینیٹلی وہ تو میرے خیال میں سبھی اٹ از کوائٹ ایویڈنٹ کہ وہ انوالو تھے. دھاندلی ہوئی ضرور ہے. 21 پارٹیز نے کہا تھا کہ دھاندلی ہوا. تحریک انصاف نے نہیں کہا تھا، 21 پارٹیز نے کہا تھا، لیکن اصل لڑا کیس تحریک انصاف نے. انتخابی نتائج عوامی مینڈیٹ کے عین مطابق تھے اور ان میں کسی سطح پر کوئی دھاندلی نہیں ہوئی. السلام علیکم ناظرین، اختلافی نوٹ میں مہرین سبتین اور ڈاکٹر بابر روان آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، دھاندلی کمیشن رپورٹ آ گئی. سیاسی فتح عمران خان کی، جبکہ جشن نواز شریف صاحب کا. عمران خان سے تازہ ملاقات کا احوال بھی آج کے پروگرام میں آپ کو سنائیں گے. ساتھ ہی ساتھ کالا باغ ڈیم یا سبز باغ، یہ بھی ضرور جانیے گا. بحریہ ٹاؤن اور ملک ریاض بھی بھتے کی زد میں آ گئے. یہ کیا ماجرا ہے جناب؟ بلدیاتی الیکشن میں نیا بہانہ، جی ہاں، بارش. تلاش گمشدہ میں ہم فلڈ ریلیف کیمپس کو بھی تلاش کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ عوام کی آواز، ہمارے ٹویٹرز جو ہم ضرور پہنچائیں گے. دل نشین شاعری کی صورت میں ہم بابر صاحب کا پیغام بھی ہمارے عوام کے نام ضرور پہنچائیں گے. بابر صاحب، سب سے پہلے تو ہم نے ابھی سنا، سب کہتے ہیں کہ دھاندلی ہے، دھاندلی ہے، دھاندلی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک تقریر آتی ہے اور اس میں کہا جاتا ہے کہ دھاندلی نہیں تھی. یہ ذرا واضح کر دیجئے، یہ کیا ہوا؟ تھینک یو ویری مچ. پہلا تو یہ ہے کہ اگر دھاندلی کمیشن کی رپورٹ کو رکھا جائے یوں، جو جے سی آر نئی آئی ہے اس کو یوں رکھا جائے ایک طرف، اور اس کے مقابلے میں پیرامیٹیریا جکسٹا پوز یوں کیا جائے، جو بیانات ہماری ساری پولیٹیکل لیڈرشپ، ابھی یہ بڑے محترم نام ہیں، سارے ہی ہمارے دوست ہیں، کچھ مہربان بھی ہیں ان میں سے، ان سب کے بیانات کو اور یوں رکھ کے ان کو آمنے سامنے تجزیہ کیا جائے تو ایک نے کہا دھاندلی ہوئی، جوڈیشل کمیشن رپورٹ دھاندلی نہیں ہوئی، دوسرے نے کہا دھاندلی ہوئی، جوڈیشل کمیشن رپورٹ دھاندلی نہیں ہوئی، ایک اور آئے انہوں نے کہا دھاندلی ہوئی، جواب آتا ہے نہیں ہوئی. اب اکثر جو گورنمنٹ کے حمایتی ہیں، پرائم منسٹر کا بیان آپ نے دیکھا، دھاندلی سب سے زیادہ مجھ سے ہوئی اور اب دھاندلی نہیں ہوئی. یہ سارے کے سارے دوست جو اب اپنا موقف تبدیل کریں گے، اور وہ 21 کے قریب پولیٹیکل پارٹیز جو دھاندلی کمیشن کے پاس گئیں اور انہوں نے جا کے کہا کہ دھاندلی ہوئی، اور ہر ایک کہتا تھا کہ سب سے زیادہ مجھ سے ہوئی، میرا مینڈیٹ چھینا گیا. اب ان کی پوزیشن ایک بڑی عجیب قسم کی پوزیشن ہو گئی ہے. میں کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا اس پہ، لیکن یہ ہے کہ قوم نے ایک طرف میں نے جس طرح تجویز پیش کیا ہے، قوم رکھے رپورٹ اور دوسری طرف اس کلیم کو رکھے، تو پھر فیصلہ کرے کہ کیا ان کی لیڈرشپ آج تک غلط کہتی رہی ہے یا یہ رپورٹ زیادہ ٹیکنیکل ہو گئی اور اس میں دھاندلی پہ کسی وجہ سے توجہ نہیں دی جا سکی. یہ دو صورتیں سامنے آتی ہیں. صحیح. لیکن میں اس رپورٹ کے حوالے سے جو گفتگو ہو چکی ہے وہ ہم نہیں کریں گے. ہم وہ گفتگو کریں گے جو گفتگو نہیں ہوئی. صحیح. اس سے پہلے ایک خبر ہے جو میں لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے. جی ضرور. اور وہ بھی بڑی خبر ہے. اس پہ بین الاقوامی دنیا کی نظریں ہیں پاکستان کے اوپر. اس پہ بین الاقوامی اداروں کی نظریں ہیں پاکستان کے اوپر. پاکستان کے اندر بار ایسوسیشنز کی نظریں ہیں، پاکستان کے اندر عوام کی نظریں ہیں، پاکستان کے اندر شہیدوں، غازیوں، زخمیوں، متاثرین کے جو لواحقین ہیں ان کی بھی نظریں ہیں. میری مراد اس مقدمے سے ہے جس میں 21ویں آئینی ترمیم اور جو فوجی عدالتیں پاکستان میں بنائی گئی ہیں ان کے حوالے سے جو پٹیشنز گئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان، اس کے حوالے سے میرے پاس جو ایک اندازہ ہے اور ایک خبر ہے. خبر یہ ہے کہ اگلے 10 دن کے اندر اس کی ججمنٹ آ رہی ہے. اچھا صحیح. اور
اس ججمنٹ کے حوالے سے باقی ہم وکیل ہیں, ہمارا گیس ورک ہوتا ہے ہر مقدمے کے حوالے سے, ہم گیس ورک کیا ججمنٹ آ سکتی ہے ہمارا, ہاں ہم کرتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں, آپ پھر پوچھتی رہتی ہیں کہ کیا فیصلہ آئے گا, کیا فیصلہ آئے گا, آپ کا فیوریٹ سوال پھر آ گیا. تو جو میرا گیس ورک ہے اس کے مطابق, اور جو بار ایسوسیشن میں 3 دن سے ریگولرلی جا کے دوستوں سے وہاں بھی مل رہا ہوں, اور جو باقی بھی ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں, اسلام آباد کی ساری دیواریں ایسی ہیں, سب کے اندر کان ہیں, اور کئی کان تو بہت بڑے بڑے ہیں. تو سونے کی کان بھی ہے نا, بہت بڑی کان تو وہی ہوگی نا. اسلام آباد کو کچھ لوگ سونے کی کان سمجھتے ہیں, یہاں آتے ہی صرف پیسہ کمانے کے لیے اور چلے جاتے ہیں, اور غریب عوام 70 سال سے اسی طرح سے رولتے رہتے ہیں. بارشوں کا حال آج ہم اس پہ بھی تذکرہ کریں گے. جو گیس ورک ہے وہ یہ ہے کہ شروع میں اس طرح سے لگتا تھا کہ شاید ایک پچھلا جو مقدمہ تھا لیاقت کیس, اور پچھلی جو نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی جس میں فوجی عدالتیں بنی تھی, شاید فیصلہ ویسا ہو. لیکن اب میرا گیس ورک یہ کہتا ہے کہ فوجی عدالتیں اور 21ویں ترمیم اس کو خطرہ نہیں ہے. اچھا, اور میرا گیس ورک یہ بھی کہتا ہے, 1 لائنر یہ بھی بتائیے گا کہ کیا یہ اچھا ہوگا اگر یہ فیصلہ آتا ہے. اچھا, اس سے اگلا صحیح, میرا گیس ورک یہ بھی کہتا ہے, میرا اندازہ یہ بھی کہتا ہے کہ فیصلہ جو بھی آئے گا, ظاہر ہے وہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے, ہم نے نہیں کرنا. ہم تو ظاہر ہے جو پروسیڈنگز چل رہی ہوتی ہیں ان کے حوالے سے کوئی گیس ورک کر سکتے ہیں یا کوئی بات کر سکتے ہیں, اور فیئر کامنٹ کے زمرے میں بات کرتے ہیں. تو جو میرا اس پہ اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ لگتا اس طرح تھا کہ بینچ شاید ڈیوائڈ ہو. میرا خیال یہ ہے کہ بینچ یونینمس فیصلہ کرے گا. اچھا, بھاری اکثریت کے ساتھ. بھاری اکثریت ہو جائے تو پھر وہ ڈیوائیڈڈ ہو جاتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ یونینمس فیصلہ آنے کی توقع قوم کو رکھنی چاہیے. چلیے ٹھیک ہو گیا, صحیح ہے. اور اگر کوئی ڈائسنٹ ہوا تو بہت ہی معمولی ہو سکتا ہے. جو صحیح, ہم واپس آتے ہیں ہمارے وہ دھاندلی کمیشن کے جو رزلٹ آیا اس کی طرف. ایک سوال یہ کرنا ہے ضرور کہ نتیجہ تو چلے آ گیا, اس کے بعد آپ کی عمران خان صاحب سے کوئی ملاقات ہوئی, اس حوالے سے ہمیں بتائیے. میرا اس نتیجے کے آنے کے بعد رابطہ بھی چترال سے انہوں نے کیا, اور پھر آج یہاں آنے سے پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی ہے. اچھا, کیا کہنا ہے عمران خان صاحب اپنا موقف تفصیلی کل دیں گے, قوم کے سامنے رکھیں گے وہ. اچھا, اور اس ہماری گفتگو جو ہوئی وہ تو میں کوٹ نہیں کر سکتا, اس لیے کہ میں نے ان کو نہیں کہا, وہ زیادہ قانونی معاملات پہ, آئینی معاملات پہ تھی. میں نے نہیں کہا کہ میں جا کے شو میں بیٹھوں گا تو اس کے کوئی کانٹینٹس ایسے ہیں جو میں بتا سکوں یا نہ بتا سکوں, سوائے اس خبر کے کہ وہ کل اپنا موقف قوم کے سامنے عمران رکھیں گے. جو میں ان کی جو ڈیمینر اس کو کہتے ہیں, باڈی لینگویج جس کو عام زبان میں کہتے ہیں, اس سے مجھے وہ اپ بیٹ لگے. اچھا, اور مجھے یوں لگا کہ جس طرح وہ اس جذبہ ہی اس کو کہا جا سکتا ہے, جنون تو ان کا سیاسی لفظ ہے اس لیے میں نہیں کہہ سکتا, اس سے سرشار ہیں کہ وہ سٹیٹس کو کے خلاف رکنے والے نہیں ہیں. اچھا, لیکن اب بھی تو آپ کو لگے سٹیٹس کو کے خلاف آپ کہتے ہیں وہ نہیں رکنے والے, لیکن کیا اس سے آپ عمران خان صاحب کی کہیں گے ان کی ناکامی ہے یہ جو فیصلہ آ گیا؟ یہ فیصلہ ان کی سیاسی فتح ہے ان کی. پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے 2 طرح کے واقعات موجود ہیں. ایک طرح کے واقعات یہ موجود ہیں کہ انتخابات کی چند سیٹوں کے اوپر دھاندلی کا الزام لگا 1977 کی اسمبلی کے خلاف, اور اس کا نتیجہ ملک میں مارشل لا آیا جو لوگوں نے 12 سال بھگتا. 12 سال بھی نہیں بلکہ 32 سال ہو گئے, 33 سال ہو گئے, سارے بھگت رہے ہیں. یہ اس وقت جتنی بھی لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے, سوائے کچھ چھوٹے صوبوں کے, خاص طور پہ پنجاب میں جو لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے, بہت ساری اپوزیشن میں اور بہت ساری گورنمنٹ میں, یہ ساری کی ساری تو وہی اسی نرسری سے, ضیاء اللہ کی نرسری سے تیار ہونے والی لیڈرشپ ہے. اس لیے ہم بھگت رہے ہیں. یہ کلاشنکوف وہاں سے آئی, یہ ہیروئن وہاں سے آئی, یہ جو واریر ساری دنیا سے اکٹھے کر کے ہمارے مغربی بارڈر کے اندر اور اس کے ارد گرد جو جنگ چھیڑی گئی, وہ ساری اسی کی تو دین ہے. اس لیے جو اس کے اوپر مجھے کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس کمیشن کے بعد, اس رپورٹ کے بعد جو تنازعات ہیں وہ بڑھیں گے, اور اس کا سبب ہے جو وکیلوں کی اکثریت ہے وہ سمجھتی ہے کہ اس کے ذریعے سے نظریہ ضرورت کو, کیلسنس تھیوری آف لا اس کو کہتے ہیں, ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی, وہ سمجھتی ہے کہ جو نظریہ ضرورت ہے وہ زندہ ہو گیا دوبارہ.
मैं सरकारी वकीलों की बात जो नौकरियों पे उनकी बात नहीं कर रहा, या जो ड्यूटियों पे हैं, नज़रिया ज़रूरत जिंदा हो गया है, तो इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स पे क्या देखते हैं आप? लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में से 2-3 चीजों को आप रूल आउट नहीं कर सकते। पहली चीज जो आप रूल आउट नहीं कर सकते वो ये है कि फौरी तौर पे बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं। जिन आरओज ने पहले धांधली की, अब आप समझे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का आपको रिटर्निंग ऑफिसर लगाएंगे, तो वो तो बड़ी दिलेरी से धांधली करेगा ना जी, इसके बाद, इसलिए कि पूछने वाला कोई नहीं है। जो ओपन एंडेड रिपोर्ट में चीजें रह गई, रिपोर्ट इंतहाई काबिल और इंतहाई काबिल एहतराम जाती तौर पे मेरे लिए खास तौर पे जजेस हैं, उन्होंने तैयार की है, लेकिन जहां जहां कुछ नहीं हुआ वो मैं एरियाज आइडेंटिफाई कर देता हूं। और सबसे पहला एरिया ये है कि जो इस रिपोर्ट के आने के बाद आपने देखा, जश्न सिर्फ नवाज शरीफ साहब ने नहीं मनाया, इलेक्शन कमीशन ने भी जश्न मनाया। उन्होंने कहा ये हमारी फतह है, हमारी इखलाकी फतह है, हमारी। तो जो कुछ हुआ, यानी कानून, ये रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि कानून टूटा ना जी, ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी भी हुई। कितनी हुई, ये पाकिस्तान के कानून में धांधली साबित करने के लिए काफ़ी नहीं है ये कहना कि 2 मन हुई या 9 मन हुई, एक छटांग भी काफ़ी है। जिस तरह एक कहते हैं ना कि एक सुराख काफ़ी है बहुत बड़ी कश्ती को डुबोने के लिए, टाइटैनिक नीचे चला जाता है, उसी तरीके से अब लोगों का एतबार इस इलेक्शन कमीशन की, इस कंपोजिशन के ऊपर, बारिंग वन मैन, रजा साहब बाद में तशरीफ लाए, जो पहले उस इलेक्शन के दौरान जो लोग मौजूद थे उनके ऊपर उंगलियां मजीद उठेंगी। आने वाले दिनों में आप देखेंगी कि लोग ज्यादा जोर से बात करेंगे। अच्छा, फिर जो इलेक्शन अभी रहते हैं, जिनको लोकल गवर्नमेंट का आपने, ये लोकल बॉडीज का इलेक्शन आपने, बल्दियात का इलेक्शन आपने कहा, वो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के गरीब इलाकों में गरीब गलियां मोहल्ले बनाने वाले जो लोग हैं, या जिनको नलका चाहिए होता है, कोई बेटी की पैदाइश इंदराज करानी है, स्कूल में दाखिला कराना है, उनको तो लोकल बॉडी से काम पड़ते हैं ना, बड़े बड़े लीडर उनको कहाँ मिलते हैं। अगर उन लोगों को भी एतबार उठ गया तो फिर एक जोसेफ स्टालिन ने एक दफा कहा था, मैं उसका उर्दू तर्जुमा करता हूं जी। उसने कहा जो वोट डालते हैं वो फर्क नहीं डाल सकते, फर्क वो डालते हैं जो वोटों की गिनती करते हैं। क्या बात है, अच्छा, इसके बड़ी खूबसूरत बात कर दी आपने बाबर साहब। लेकिन यहाँ पे इस पे स्टेटस को, यानी आप कह रहे हैं कि जीत गया? मैं नहीं कहूंगा कभी भी स्टेटस को जीत गया। आपकी बातों से तो यही लगता है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि कुछ ऐसे खामियां हैं इस निजाम के अंदर। रिपोर्ट अब आ गई है, उसके ऊपर फेयर कमेंट किया जा सकता है। मैंने पहले कह दिया कि मेरे लिए जाती तौर पे बहुत काबिल एहतराम जजेस, और एक जिनको मैं खींच खांच के इस्लामाबाद लाया था बड़ी मुश्किल से, जब मैं लॉ मिनिस्टर था, और उनको एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे, उससे पहले उनको एक सियासी जज ने जज के तौर पे वो काम कर रहे थे, सिंध में निकाला, और फिर वो नैब के रहे प्रोसिक्यूटर जनरल भी, के आगा इज अ ग्रेट लॉयर, उन्होंने भी मुआवनत की है। लेकिन जो ओपन एंडेड बातें, मैं उनकी बात करूं, एक बात अभी सिर्फ मैंने की है, वो बात यह है कि लोगों का एतबार उठेगा। एक और है, दूसरा ये है कि अगर लोगों को ये पता चल जाए कि उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती, वो कानून तोड़ के, फॉर्म 15 गायब करके, वो गलत शनाख्ती कार्डों पे वोटें डलवा के, वो गलत तरीके से अंगूठे, अपने ही एक ही अंगूठा पता नहीं 700 दफा लगा के भी वो बच सकते हैं। वो बॉक्स जो बंद करने हैं, उनके पास एक मैनुअल की किताब पड़ी हुई है, पूरी इलेक्शन कमीशन ने दी है कि आप इस तरीके से इस रिकॉर्ड को बंद करेंगे। उसको सील करने के बजाय उसमें आलू के पकौड़े डालने वाले अगर रद्दी भर देते हैं, ये सारा कुछ करने के बाद उनको अगर शाबाशियां मिलती हैं और उनको अथकड़ियां नहीं मिलती, वो अगर जेल नहीं जाते, वो मजीद तरक्कियां लेते हैं, तो फिर जाहिर है ये हम किसका रिवाज डाल रहे हैं कि कानून इस काबिल नहीं है कि उसके ऊपर अमल किया जाए, और आवाम का एतबार जो है वो भी खो रहा है। बाबर साहब, लास्ट बट नॉट लीस्ट बताइएगा, हालात किस तरफ जाएंगे? वेरी शॉर्ट कमेंट मेरा इस रिजल्ट के बाद। मेरा इस रिजल्ट के बाद जी हालात झगड़े की तरफ जाएंगे। अच्छा, और झगड़ा इस दफा थोड़ा सा लार्ज स्केल होगा और वास्ट होगा, इसलिए कि हुकूमत ये समझती है कि हमने मैदान मार लिया, और अपोजिशन की अगर ब्रूज्ड ईगो के साथ जो हस्बे रिवायत छेड़छाड़ करने वाली हुकूमत है, और इनकी जो तबीयत है और इनकी जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है, उसके मुताबिक तो अगर ये पाकिस्तान में अकेले हो तब भी लड़ पड़ेंगे, अपने आप से लड़ पड़ेंगे। आपने कहा लड़ पड़ेंगे, और लड़ पड़े कामों की में अभी हमारे चल भी रहा है, स्क्रीन के ऊपर लड़ाई भी होगी है पीटीआई नून लीग के कारकुनों के दरमियान। झगड़ा तो चल पड़ा है, पता नहीं कहां तक जाएगा। बाबर साहब, बल्दियाती इलेक्शन की आपने बात की, और बल्दियाती इलेक्शन सिंध पंजाब के तो ऐसे बार बार मुलतवी हो रहे हैं, और अब दोबारा एक इजलास बैठने वाला है, मेरे ख्याल से फिर कुछ फैसला होगा। तो ये क्या, और अब तो एक और बड़ा बहाना मिल गया इनको डिले करने का, बारिशें, सैलाब,
शुक्र किया होगा, अल्लाह माफ करे, लोग बहुत बुरे हाल में और इस वक्त बारिश को बहाना बना बुरे हाल की परवाह किसको है? इस बुरे हाल के बावजूद जो दो बड़े साहिबान हैं जिनके पास इक़्तिदार है 35 साल से, द चीफ मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर, वो दोनों बैरून मुल्क से दौरे पे चले गए, उनको तो परवाह ही नहीं है। वो कहते हैं जी होता रहे, हम फिर आ जाएंगे। अच्छा, अब इस धांधली से और हौसला अफजाई हो गई है, इस तरह के जो मिक्स्ड किस्म के मैसेजेस आए उनसे और हौसला अफजाई हो गई है। जो आने वाले इलेक्शन हैं, बल्दियाती इलेक्शन, उनके चैलेंजेस 3 हैं, मैं मुख्तसरन रख देता हूं। एक चैलेंज, क्या इलेक्शन कमीशन डिफॉल्टर्स को रोकेगा? क्या इलेक्शन कमीशन करप्ट प्रैक्टिसेस करने वालों को रोक सकेगा? क्या इलेक्शन कमीशन आईन में, कानून में दी गई एहलियत और नाअहली, जो दोनों जगह एक ही दी गई है, उसके मुताबिक उम्मीदवारों को सामने लाएगा, या जितने सियासी काट कबाड़ है वो सारे का सारा इस इलेक्शन में आ जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। सही। दूसरा चैलेंज ये है कि इस रिपोर्ट के बाद जिनकी हौसला अफजाई है धांधली करने वालों की, उनके ऊपर कंट्रोल का कोई मैकेनिज्म इलेक्शन कमीशन बना सकेगा? आई डोंट सी दैट हैपनिंग। हुकूमतें कुछ करेंगी, क्यों करेंगी? हुकूमतों को तो फायदा होता है धांधली से, वो तो बैठे हुए हों, अगर तो जितवा सकते हैं अपने लोगों को, वो क्यों करेंगी? 2। और तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि पंजाब में पूरा बल्दियाती निजाम डिप्टी कमिश्नर के नीचे कर दिया गया है। ये सारी चीजें गोरों की क्यों पसंद है हम लोगों को? सही। अच्छा बाबा साहब, ये बताइए कि अभी इस वक्त जो सिचुएशन सारी बन गई है, हम देख रहे हैं कि एक लामतनाही सिलसिला भी शुरू हो जाएगा हदबंदियों के हवाले से, हाई कोर्ट में अपील्स जानी शुरू हो जाएंगी, हर तरह की टैक्टिक इस्तेमाल कर ली जाती है डिले करने के लिए। आपको लगता है कि डिले हो जाएगा इन तरीके वारदात के साथ इलेक्शन? हाँ जी। हुकूमतें तो सीरियस ही नहीं है करवाने में, ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कामयाब हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मुदाखलत की वजह से हुआ। मैंने यहां बैठ के कहा था ना, आपको याद है, उस वक्त सारे कह रहे थे इस्लामाबाद का इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन। हो गया इलेक्शन? सही। नहीं हुआ ना? क्यों नहीं हुआ? ब्यूरोक्रेसी ताकतवर है। इस्लामाबाद का एक ऐसा न्यास सेक्टर है, मेरे पास पेपर्स जिस दिन आ गए, मैं उन पेपर्स दिखा के बात करना चाहता हूं, जहां मुतासरीन के नाम के ऊपर बहुत बड़े बड़े पेंशनर्स, बहुत बड़े बड़े ओहदों से रिटायर होने वाले वो प्लॉट ले रहे हैं। सही। कोड़ियों के मोल मुतासरीन बैठे हुए हैं, उनको बिल्ट अप प्रॉपर्टी भी कुछ नहीं मिला। एक झगड़ा वहां भी होगा, उससे पहले सीरी सराल में D12 के अंदर झगड़ा हुआ था, 3 आदमी वहां अपनी जान से भी गए थे। सही। इसलिए दुरुस्त करने की जरूरत है इस निजाम को। दुरुस्त तब होगा जब कानून की हुक्मरानी होगी। कानून की हुक्मरानी तब होगी जब ताकतवर के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। गरीब तो पहले ही मरा हुआ है, गरीब को और कितना मारेंगे ये? सही। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। वाकई गरीब जो है उसका हक उसको कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, यही सवाल है हमारा। नाज़रीन, बात करेंगे जब ब्रेक से वापस आएंगे कालाबाग डैम पर। जी हाँ, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पानी की किल्लत भी है, पानी की ज्यादती भी है, पानी को सही से इस्तेमाल नहीं किया जाता, वरना यहाँ पर किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमारे साथ रहिएगा एक ब्रेक के बाद। 3 पर सिर्फ दुनिया न्यूज पर। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें बड़े आबी ज़खायर बनाना पड़ेंगे, ये ना बनाकर अवाम के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया जा रहा है। आज इस हकीकत पर से पर्दा उठाते हैं। बाबर साहब, कालाबाग डैम की बात करते हैं। ये जो डैम नहीं बनाए जाते, रिजर्व नहीं किया जाता, पानी को सेव नहीं किया जाता, और ये इतना पानी जो ज़ाया हो जाता है, ये सब क्या हो रहा है? क्यों नहीं बनाए जा रही है? एक जो पाकिस्तान के हुक्मरानों का और खास तौर पे पंजाब के हुक्मरानों का, इसलिए कि कालाबाग डैम पंजाब में बनना है और पूरे पाकिस्तान को इसका फायदा जाना है, उनका जो रवैया रहा है साल तक, पिछले तकरीबन 30-32 साल में एक ही तरह की तर्ज हुक्मरानी, एक ही पार्टी, कभी उसका एक हिस्सा कभी उसका दूसरा हिस्सा इक़्तिदार रहा है। तो उन्होंने इस कालाबाग डैम का सब्ज बाग बना दिया, एक मुहावरा ही उन्होंने तब्दील कर दिया है बिल्कुल सिरे से। और इस कदर उनका जालिमाना रवैया है कि आप उसका इजहार देखती हैं कि पानी नीचे जा रहा है, वाटर रिजर्वायर्स, अच्छा अंडरग्राउंड वाटर लेवल, सरफेस वाटर लेवल, पीने का पानी, ज़राअत का पानी, घरेलू इस्तेमाल का पानी, नहाने धोने का, बर्तनों के लिए खाने का पानी, वो सारे का सारा या तो गंदा है या बीमारी वाला है और या कम है जहाँ पे साफ है। सही। इसका एक पहलू। दूसरा पहलू ये है कि सिर्फ ये जो बारिशें अभी तक हुई हैं, मुझे एक एक्सपर्ट ने बताया कि 4 अरब रुपए से ज्यादा का पानी हम उठा के बहरा अरब में फेंका है और उसको कोई रोकने वाला नहीं है। सही। एक बात ये। दूसरी बात, तीसरी बात इससे भी इंपॉर्टेंट है, जब सैलाब निकलता है एक सिरे से लेके वो सैलाब आता है तो वो शुरू होता है नॉर्थ से,
काला बाग डैम से वो गुजर जाता है, मियां वाली को भी रोनता हुआ और फिर जाके वो सिंध के 2 इलाकों को रोनता हुआ वो फिर जाके समंदर में गिरता है। तो कभी किसी ने सोचा कि इस गिरते हुए पानी को बचाने के लिए रिजर्वायर बनाने से किसी ने मना कराया हुआ है? हर सैलाब के बाद जो जागीरदार है, जो वडेरा है और जो जमींदार है और जो एमपी है और जो एमएनए है और जो मिनिस्टर है, उसके ऊपर इल्जाम लगता है कि इसने अपनी जमीन बचाने के लिए पूरा शहर डुबो दिया। एक शख्स के लिए पूरे आवाम को स्टेक पे लगा दिया जाता है। एग्जैक्टली। अच्छा, अब इसका एक और पहलू भी है जो इससे भी ज्यादा परेशान कुन पहलू है, वो ये है कि जो इस डैम के ऊपर उनका ताल्लुक शमसुल मुल्क साहब, उनका ताल्लुक केपीके से है, इस डैम के ऊपर उनका एक नेशनलिस्ट अपना स्टांस है। उनका भी मौक़िफ़ ताज़ा तरीन मैं आपको बता देता हूं। वो ये कहते हैं कि आने वाले कुछ सालों में कहत आने लगा है। उनसे सवाल हुआ कि जनाब कैद किस तरह से आएगा, इस्लामाबाद में कैद कहां से आएगा और पंजाब में कैद कहां से आएगा, और ये तरनाब का इलाका, तरनावे का जिसको कहते हैं, दरिया काबुल के साथ साथ पेशावर वाला जो वर्सक तक जाता है, यहां से आप किस तरफ से आएगा कहत। तो उनका ये कहना है जब पानी नहीं होगा तो फिर कहत आएगा ना। ठीक है। अच्छा, अब बाकी ये 2 बातें तो मैंने इसलिए हवाले के लिए आपके सामने रख दी। जो असल इशू है वो ये है कि पिछले दिनों इमरान खान साहब ने, जिनकी पार्टी वहां पे गवर्नमेंट में जिक्र किया और उसके बाद बड़ा गुस्से हुए वजीर कानून गालिबन जो है पंजाब के। अब आप देख लीजिए ना, और उससे पहले जो वजीर आला के साहबजादे हैं उन्होंने कहा कि ये देखें बड़े जालिम है जो काला बाग डैम नहीं बना। वो तो गवर्नमेंट आपकी है, आपकी गवर्नमेंट, आप किसको कह रहे हैं जालिम है? अंकल को या किसी और को? कौन है जालिम जो नहीं बनने दे रहा? सही। अच्छा, अब काला बाग डैम का जो इशू है उसके ऊपर जो पोजीशन है वो भी कौम के सामने रखनी चाहिए। पोजीशन ये है कि उसके ऊपर कंसेंसस के लिए कभी किसी ने गुफ्तगू भी नहीं की। पहली बात ये हो गई। एतराजात हैं उनको दूर करने के लिए कभी किसी ने इनिशिएटिव भी नहीं लिया। सही। तीसरी बात ये हो गई, अगर ये नहीं तो बाकी रिजर्वायर तो बनने चाहिए थे। बिल्कुल। अच्छा, चौथी बात हो गई। चौथी बात ये है कि क्या दुनिया की तारीख में किसी मोहल्ले के अंदर पूरे मोहल्ले का कंसेंसस करा के आप गली भी बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। जनरल कंसेंसस एक होता है इश्यूज के ऊपर, जनरल कंसेंसस। अच्छा, फिर इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के आईन, पाकिस्तान के निजाम, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास कोई ऐसे फोरम मौजूद हैं जहां पे ऐसे इशू उठाए जा सके? आंसर इज यस। आईनी फोरम है, मुश्तरका मुफादात की काउंसिल, ठीक है, सारे सूबे बैठते हैं, सबकी नुमाइंदगी वहां पे बराबर है। हल को अवेल नहीं किया जाता। नहीं जी, हल अगर हो गया ना जी, अगर हल हो गया ना तो फिर लोग मुश्किलें किसके आगे बयान तब्दीली आ करेंगे? जाएगी। अगर मसाइल खत्म हो गए ना तो फिर वडेरा क्या करेगा? अगर गुर्बत चली गई तो फिर लीडर क्या करेगा? अगर मनी लॉन्ड्रिंग रुक गई तो फिर बच्चे बाहर कैसे रहेंगे? अगर बाहर से पैसे टीटी के जरिए से, और अब तो एक और भी यानी मजहब के साथ भी खिलवाड़ हुआ कि अब कहते हैं जनाब कि मुझे मेरे बेटे ने कर्जे हंसना इतने लाख डॉलर जो है वो भिजवा दिए हैं, और बेटा कमाता क्या है, बेटे की तालीम क्या है, बेटे ने किया क्या है जिंदगी में, ये कोई पूछने वाला नहीं है। जिस तरह अमेरिका किसी वक्त कहा जाता था लैंड ऑफ फ्री, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, दिस इज द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी नाउ। आज पाकिस्तान की सारी जमीनों के ऊपर लैंड माफिया कब्जे करता जा रहा है। हाउसिंग बनाना जरूरी नहीं है, इस्लामाबाद आप देख लें, और एक फाजिल जज साहब भी कब्जा हटवाने के लिए बड़े ऑर्डर्स कर रहे हैं, लेकिन वो ऑर्डर्स के ऊपर नुमाइशी अमल दरामद होता है। सही। और पाकिस्तान के खजाने के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग वाले, इतना बड़ा नेटवर्क एक खास ट्रैका है। मैंने आज अपने दुनिया न्यूज में वकालतनामे के अंदर भी उसका थोड़ा सा हल्का सा इशारा दिया है, किसी वक्त फिर बात करेंगे उसके ऊपर। लेकिन ये वो जमीन है जिसको पानी की जरूरत है और ये हुक्मरान पानी देने के लिए तैयार नहीं। ये वो जमीन है जिसके लोगों को रोटी की जरूरत है, रोटी का जैली सारा कार्रवाई की गई और आज अरबों रुपए हमारे लग गए। ये वो जमीन है जहां पे सेहत की सहूलत, मुफ्त तालीम, गरीब के बच्चों की हिफाजत, और औरतों को चांद रात पे हिफाजत नहीं दे सके। कहते हैं इस सारे के जवाब में मेट्रो ले लो। सही कह रहे हैं बाबा साहब। बल्कि बात सबसे बड़ी है, हमारे हमसाए में एक ऐसा मुल्क मौजूद है जहां पर इधर से ज़्यादा बारिशें होती हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने फ्लड जोनल्स बनाए हुए हैं, वो उस पानी का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम यहाँ पर कहत साली का भी शिकार होते हैं और हम सैलाब का भी शिकार होते हैं। ये तो एक बड़ा अलमिया है। बाबा साहब, अभी आपने एक और जिक्र किया, आपने कहा कि इस्लामाबाद भी नहीं बचा, बड़े बड़े इस्लामाबाद नहीं बचा, इस्लामाबाद नहीं बचा,
भत्ते से बड़े बड़े लोग नहीं बचे। मलिक राज की मैं बात कर रही हूँ, बैरिया टाउन की मैं बात कर रही हूँ। ये एक वाकया सामने आया, जरा पहले थोड़ा सा इस वाकये का पस मंजर बताएंगे। देखिए, मैं उनका मेरे पास ब्रीफ भी है, इसलिए मैं कोई तफसीली बात या मेरिट्स के ऊपर जो सब जो चीजें उनके ऊपर मैं गुफ्तगू नहीं करूंगा। लेकिन एक पिक्चर, लेकिन उससे पहले पिक्चर ये है, मैंने आपको याद है कि रमजान शरीफ में कहा था कि FA2 में भत्ते की पर्ची है, वो भी बहुत बड़े ताजिर थे। अच्छा, सही। मैंने कहा था ना, इसी प्रोग्राम में मैंने कहा था, कुछ हुआ नहीं हुआ, किसी ने पर्चा किया नहीं किया, वहां 2 दिन पुलिस वाले बैठे, उनके खर्चे पे घर वालों से उन्होंने दिन के वक्त भी चाय मांगी और फिर वो उठ के चले गए नाराज होके। ये इस्लामाबाद की मिसाली पुलिस है। अगर इतने साहिब हैसियत लोग जो हैं उनके साथ भी यही होगा। अच्छा, उनका भी पर्चा दर्ज नहीं होगा। अब आम लोग कहाँ जाएंगे? वही पुलिस क्या कर रही है, वही पुलिस ये कर रही है कि अब मलिक रियाज जैसा फिलैंथ्रोपिस्ट जिसने पाकिस्तान की हाउसिंग एंड वर्क्स सारी मिनिस्ट्रियों से ज्यादा लोगों के लिए हाउसिंग कॉलोनियां भी बना रहा है, बाकी काम भी कर रहे हैं, वो इदारा जो टैक्स देता है उस इदारे के ऊपर जब इस तरह का कोई भत्ते का हमला होता है, अटेम्प्ट होती है, वसूल किया जाता है, उसके सबूत दिए जाते हैं, तो पुलिस क्या कर रही है? वही जो उसने FA2 में किया, पर्चा नहीं हुआ ना। सही। तो वो कहाँ है जो कहते थे कि हम ऑनलाइन FIR करवाया करेंगे? वो कहाँ है जो कहते थे कि जो मजलूम होगा उसके दरवाजे पे जाके SHO FIR करेगा? और वो कहाँ है जो ये कहते थे कि हम किसी के असर और रसूख में नहीं आएंगे अगर जो लोग, अगर इस तरह के लोग बाहर, जब कोई गरीब आदमी पैसे कमाता है ना और वो कौम को टैक्स देता है, तो पता है इंग्लैंड में क्या होता है? क्वीन ऑफ इंग्लैंड उसको अपने फंक्शन में बुलाती है। अच्छा। हाँ, उसको 10 डाउनिंग स्ट्रीट में ले जाया जाता है और कहा जाता है कि देखें इसने बड़ी खिदमत की है कौम की। और अगर वो आदमी गिर जाए, गरीब हो जाए, तो पता क्या करती है रियासत? उसको काउंसिल हाउसिंग उसको कहते हैं, एक फ्लैट दे देती है कि तुम यहां रहो। क्या बात है। और जो बेरोजगार हो जाए उसको पता क्या करती है गवर्नमेंट? उसको बेरोजगारी अलाउंस। बेशक वो पाकिस्तान से जुर्म करके भागा हुआ या सियासी पनाह का तालिब कोई उठ के इराक से आए, उन मुल्कों में जिन मुल्कों में कुफ्र का निज़ाम है, उन मुल्कों ने ये निज़ाम इंसानों की फलाह के लिए रखा हुआ है कि वो उसको रोटी भी देते हैं, मकान भी देते हैं, उसको सड़क पे नहीं सोने देते और उसको पनाह भी देते हैं। और हमारे बरादरान इस्लाम में से हमें कोई शरीयत देने के लिए तैयार नहीं होता। पाकिस्तान खुला मुल्क है, इसके अलावा बाकी वो शरीयत भी दे देते हैं। तो ये तहफ़्फ़ुज़ जो आइन के आर्टिकल 4 में लिखा हुआ है कि शहरियों को कानून के मुताबिक मिलेगा, वो कब मिलेगा और किस मुल्क के शहरी हैं जिनको मिलेगा? जब इस तरह के लोगों को भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है तो अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास का फिर आप अंदाज़ा लगा सकती हैं खुद ही। सही। शहरियों को उनके हुकूक कब मिलेंगे? वाक़ईतन ये हमारा सवाल भी है और ये हम चाहते हैं कि हमें इसका जवाब भी मिले। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम तलाश गुमशुदा में फ्लड रिलीफ कैंप्स को तलाश करेंगे। कहाँ है ये फ्लड रिलीफ कैंप्स, ये ज़रूर जानिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। एक बार फिर सैलाब आया, खेत खलियान सब डूब गए, आबादियां तबाह हो गई। हमने देखा बाबर साहब हर साल इस तरह से होता है। हम इंतज़ार करते हैं कि ये सैलाब आए, ये नुकसान हुए, और ऐसे मौके पर हम तलाश गुमशुदा में ज़रा फ्लड रिलीफ कैंप्स को ढूंढ रहे हैं। हमें नहीं कोई तैयारी नज़र आती, लोग परेशान हैं, बदहाल है, खामोशी क्यों है? 2 इशूज़ हैं। एक इशूज़ तो ये है, इशू नंबर 1 के इश्यूज़ में से एक इशू, लोगों को कमज़ोर समझा जाता है कि ये कुछ करने के काबिल नहीं रहे, ये बोलेंगे भी नहीं, ये उठेंगे भी नहीं, ये एहतजाज नहीं करेंगे, ये हमारा रास्ता नहीं रोकेंगे, ये हमें वोट से महरूम नहीं करेंगे। यूँ समझा जाता है कि ये जो पूरा एक अंबर बेल अंकबूत बैठा हुआ है लोगों के सरों के ऊपर, जो नज़र नहीं आता, जिसकी जड़ें नज़र नहीं आती, लेकिन वो जाएगा नहीं। इस एश्योरेंस की वजह से कि जो कर गुजरे हम कर गुजरे। आप देखिए ना, पिछली दफा जो वादे किए गए थे, अब वो वादे रुकवाए जा रहे हैं। जो टीवी चैनल चलाता है वहां जाके, तो मंशूर था ना। ठीक, एक पहलू ये हो गया। अब इसका दूसरा मंजरनामा ये है कि मंशूर नहीं था, जाके जिस तहसील में चीफ मिनिस्टर पंजाब ने भी कह दिया कि जनाब मैं आपको पुल बना के, मेरे भाइयों मैं आपको पुल दूंगा। कल मैं देख रहा था वही हैट था, वही लंबे बूट थे, वही खाकी वर्दी थी, वही इलाका था, ना पुल है और ना कोई आवाम के लिए और रिलीफ है। अच्छा, फिर रिलीफ कैंप्स जितने भी है वो सारी जेलसाजी है। रिलीफ कैंप्स इस तरह से हर इलाके का प्राइमरी स्कूल, हर इलाके की गवर्नमेंट बिल्डिंग, उसके अंदर रिलीफ का सामान पड़ा हुआ, उसका एक कमरा टेंटों से भरा हुआ, दूसरे कमरे में पानी की बाल्टियां हो, एक कश्ती वहां पे खड़ी हो। अगर सैलाब आया, हमको पता है ना सैलाब का रूट क्या है,
सैलाब का रूट सबको पता है। बिल्कुल, हाँ जी। तहसील कोटा और मरी के ऊपर तो कभी नहीं चढ़ सकता ना सैलाब, ठीक है। फिर जो बाराखान का पहाड़ है उसके ऊपर भी सैलाब ने तो नहीं चढ़ना। जो निशेबी इलाके हैं और आबी गुजरगाहों के साथ साथ है वो हमारे इल्म में है, सही नहीं करते ये। और उसका फिर सबब वही है कि लोग खामोश हैं। और फिर लीडरशिप आप देख लीजिए, आधी मुल्क से बाहर होती है और आधी मंजर से गायब हो जाती है कि हम क्यों जाएं और हमारे खिलाफ नारा ना लग जाए, हम क्यों जाएं और अपने खिलाफ एक वीडियो क्यों बनवा लें, फिर सोशल मीडिया चलाता रहेगा। इसका जो असली सबब है वो ये है कि किसी दर्जे के ऊपर ये जो गवर्नेंस रोजाना की तेज रफ्तारी के साथ फेल हो रही है, हुक्मरानी फेल हो रही है, पाकिस्तान का निजाम फेल हो रहा है, पाकिस्तान के लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा, उसका सबब यह है कि इदारे ही सिरे से मौजूद नहीं है। आप और मुझे दोनों को इल्म नहीं है कि पूरे मुल्क के अंदर जो रिलीफ का कमिश्नर है उसका नाम क्या है, उसका दफ्तर कहां है, उसका टेलीफोन नंबर कहां है, उससे राब्ता किस तरह से किया जा सकता है। कोई इमरजेंसी लाइन नहीं है। और हर चीज अब तो यह है कि जो मच्छर मारने का स्प्रे है उसके ऊपर भी जब तक लीडर की फोटो ना लगे लीडर को तसल्ली कोई नहीं होती। अब तो ये हो गया है कि अगर चूहे मार दवाई की गोलियां बांटनी है किसानों में तो उसके ऊपर अपनी पार्टी का झंडा भी छापना है और लीडर की तस्वीर है कि अजीम चूहे मार लीडर आ गए। बाबर साहब, और हमें बाद में ख्याल आ जाता है सिंध हुकूमत ने भी चला दिए नंबर वगैरह जहाँ पे आप फ़ोन कर सकते हैं और जहाँ से फ्लड के हवाले से आप मालूमात भी ले सकते हैं और तबाही के हवाले से, बचने के हवाले से आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें हमेशा देर से याद आता है जब सब कुछ हो जाता है। हमारी आज ट्वीट्स भी इसी से भरी हुई है, बहुत से लोगों ने बहुत सी जगहों से पैगामात भेजे, लोग बहुत परेशान हैं। जी, सैलाबी ट्वीट्स हैं जी आज ज्यादातर। वी पाकिस्तानी कहते हैं इन फ्रंट ऑफ माई हाउस बदलते हुए पंजाब का एक खुसूसी मंजर। ये आपने देख लिया जी, घर के अंदर आया हुआ सैलाब, बदलता हुआ पंजाब। जी हाँ, ये उबलता हुआ पंजाब है जी आजकल तो, बल्कि डूबता चलता हुआ पंजाब है। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, हमारी दुआ है। डॉक्टर अब्दुल कदीर मेमन साहब कहते हैं जी कि मुमकिना बारिश में टीएमए नशर फिरोज NA 211 की कारकर्दगी। ये जरा देख लें जी, सिंध वाले और सिंध गवर्नमेंट और यहाँ से जो MNA साहब हैं, अगर वो मिनिस्टर हैं, उनके नीचे कोई MPA मिनिस्टर हैं, तो दोनों को वहाँ पे जाके लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए और पहुँचना चाहिए। फिर इन्होंने सैलाब का एक मंजरनामा भिजवाया है, वो भी जरा दिखा लीजिएगा जी। अगले हैं डॉक्टर कदीर मेमन साहब का सच बोल, कहते हैं ईदी फॉर कराची पीपल। ये जरा दिखा दीजिए कि जी ईदी किस तरह की कराची के लोगों को मिली और वहां पे इंतजामिया किसी जगह आपको नजर नहीं आएगी इसके दौरान। ये फैसल जावेद साहब हैं, कहते हैं सर पिंडी घेप शहर का एक रोड कब से 10 सालों से खराब है, अब जब बनना शुरू हुआ तो यहाँ के किसी मलिक साहब ने बंद करवा दिया। मलिक साहब खुदा दा खौफ करो जी, मैं मलिक होने के नाते भी तुहानू रिक्वेस्ट कर रहा, बनन दो सड़क लोगों दियां, रस्ते बनाई दे होंदे, बंद नहीं करी दे होंदे, पुल बनाई दे, कंधा नहीं चाड़ी दियां। और रशीद अजमल साहब है, कहते हैं ये हाल है 12 लाख की आबादी के शहर मीरपुर खास के और गंदगी उन्होंने दिखाई हुई है। अल्लाह ताला तौफीक दे इन हुक्मरानों को कि कभी अवाम की तरफ भी देखें। सही बाबर साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ। हमारे आवाम की आवाज़ और ख़ास तौर पे ये इस वक्त जो सैलाब पूरे मुल्क में जो सूरत हाल है उस हवाले से हमने एक रिक्वेस्ट की है, ज़रूर इस पर गौर कीजिए। कालाबाग डैम ना सही, आप कम से कम रिजर्वायर्स तो बनाइए, कम से कम उस पानी को सेव तो कीजिए। ये हमारा आज के प्रोग्राम का ख़ास पैगाम है। हमारे आवाम की आवाज़ भी हमने बिलखुसूस वही पैगामात उठाए जिससे मुतल्लिक है। बाबर साहब, जाते जाते ख़ास पैगाम आप अपनी दिलनशीन शायरी के ज़रिए ज़रा आवाम को दीजिए। जो प्रेजेंट सिनेरियो है जी उस पर बहुत अच्छा कहा है जालिब ने तो वैसे जो कुछ कहा सारा ही अच्छा कहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि ये मुनसिफ भी तो कैदी हैं, हमें इंसाफ क्या देंगे। लिखा है इनके चेहरों पर जो हमको फैसला देंगे। उठाएं लाख दीवारें, उठाएं लाख दीवारें, तलुए महर तो होगा। उठाएं लाख दीवारें, तलुए महर तो होगा। ये शब के पासवां कब तक
نہ ہم کو راستہ دیں گے. ہمیں تو شوق ہے اہل جنوں کے ساتھ چلنے کا, شوق ہے اہل جنوں کے ساتھ چلنے کا, نہیں پرواہ ہمیں یہ اہل دانش کیا سزا دیں گے. ہمارے ذہن میں, ہم سب کے ذہن میں, ہمارے ذہن میں آزاد مستقبل کا نقشہ ہے. ہمارے ذہن میں آزاد مستقبل کا نقشہ ہے. زمین کے ذرے ذرے کا مقدر جگمگا دیں گے انشاءاللہ. اور جالب کہتا ہے ہمارے قتل پر جو آج ہیں خاموش, کل جالب بہت آنسو بہائیں گے, بہت دادے وفا دیں گے. یہ شب کے پاسباں کب تک نہ ہم کو راستہ دیں گے. یہ منصف بھی تو قیدی ہیں, ہمیں انصاف کیا دیں گے.